concept of product output. Product or the output refers to the volume of goods produced by a firm or an industry during a specified period of time. आपका प्रोडक्ट कितना है, मतलब आपका आउटपुट क्या है, कितने यूनिट्स बनाए, यूनिट्स में बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है. The concept of product can be looked at from three different angles. What is total product, what is marginal product, and what is average product. एक एक करके बात करेंगे. Total product also known as total, कुछ बुक्स इसको बोलते हैं total physical product. Total physical product क्योंकि हम यूनिट्स में बातें कर रहे हैं, वैल्यू में नहीं. Total product, it refers to the total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with the given number of inputs. Total product 100 units, 100 kgs, 1000 units, 1000 kgs. Total production कितनी रही? For example, if 10 laborers produce 60 kg of rice, then the total product is 60 kg. In the short run, a firm can expand total product by increasing only the variable factors. However, in the long run, total product can be raised by increasing both fixed and variable factors. In the long run, fixed factors भी बढ़ाए जा सकते हैं, variable factors भी बढ़ाए जा सकते हैं. In the short run, only variable factors can be changed. Total product is also known as total physical product or total return or total output. Total product is your total production with the various inputs that you are using. Average product refers to the output per unit of variable input. Average product is the total product divided by units of variable factor. आपके total production थी 60 kgs, आप यूज कर रहे थे 10 units of labor, तो 60 divided by 10, 6 हो गई आपकी एवरेज प्रोडक्ट. उसको रीड किया जाए तो 6 kg पर यूनिट ऑफ लेबर. तो 6 एवरेज ऑन एन एवरेज हर एक इंसान कितना बना रहा है, ऑन एन एवरेज कितना बना रहा है. बट जरूरी है क्या हर एक इंसान उतना ही बना रहा होगा? नो. फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, एक बंदे को बुला के हमने उससे 20 बना पाया, फिर कोई 10 बना पाया, कोई 6, कोई 4, कोई 10, 5, ऐसे अलग अलग थे. बट 10 लोग मिला के टोटल 60 बना रहे हैं, तो एवरेज तो 6 kg पर यूनिट ऑफ लेबर आएगी. तो एवरेज इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक बंदा उतना बना रहा होगा. आपकी एवरेज परसेंटेज 92 है, इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि हर सब्जेक्ट में 92 आए, हो सकता है किसी में भी नहीं आए, लेकिन ऑन एन एवरेज वो 92 है. तो एवरेज प्रोडक्ट is the total product divided by units of variable factor. For example, if total product is 60 kg of rice produced by 10 units of labor, then the average product will be 60 divided by 10, that is 6 kg average product. AP is divided by AP is calculated by dividing TP by the units of TP is the total product divided by the units of variable factor. अब ध्यान से देखना, AP is equal to TP by units of variable factor. लेबर ले लिया assumption, तो इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं TP is equal to AP into L. Yes or no? कोई डाउट? Hello. Cross multiplication where L क्या है? लेबर, units of variable factor. L क्या ले लिया मैंने? लेबर. कोई भी डाउट? और AP is the total product divided by units of variable factor. TP का फॉर्मूला, AP का फॉर्मूला, कोई डाउट? मार्जिनल प्रोडक्ट, हमने सुना था मार्जिनल यूटिलिटी. ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. Marginal addition made to the total product when one more unit of the variable factor is employed. मतलब एक लेबर था, बना रहा था
10 यूनिट्स, एक और लेबर अगर आपने हायर करी तो और कितना बना पाओगे एडिशनली? कह रहे एक और लेबर हायर करी तो 15 और बना पाओगे, 15 और बना पाओगे। एक लेबर से 10 बना रहे थे, 15 और बना पाओगे तो टोटल 25 बना पाओगे। टीपी इज द टोटल प्रोडक्ट, 2 लोग अगर हो गए तो 25 यूनिट्स बनेंगी। सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर की वजह से एडिशनली कितना बना पाए, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट when one more unit of variable factor is employed. So MPN is TPN minus TPN minus 1. Same like marginal utility, TUN minus TUN minus 1. दो डिफरेंट लेवल्स के जो टोटल प्रोडक्ट थे उनमें जो डिफरेंस है वही होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। If 10 laborers make 60 kg of rice and 11 laborers make 67 kg of rice, तो जो 11th लेबर था वो और कितने बना पाया, कितने बना पाया? 7 kg of rice. So the marginal product is also known as marginal physical product और marginal return. मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग और फॉर्मूला समझ आया? कोई डाउट? मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग और फॉर्मूला समझ आया ऑनलाइन? यस सर। ओके। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये टीपीएन माइनस 1 और दूसरा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टीपी कितने से चेंज हुआ यहाँ पे? 60 to 67 गए तो 7, लेबर कितने से चेंज हुई? 10 से 11 गए 1, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 वो है। अब एग्जांपल, सपोज 2 लेबर प्रोड्यूस 60 यूनिट्स एंड 5 लेबर्स प्रोड्यूस 90 यूनिट्स, देन मार्जिनल प्रोडक्ट वुड बी, जब 2 लोग काम कर रहे थे तो 60 यूनिट्स बनी, 5 लोग काम कर रहे थे तो 90 बनी। अब सर एडिशन 1 की तो हुई नहीं, एडिशन तो 3 लोगों की हो गई, बट एडिशनल प्रोडक्ट 1 यूनिट की होती है, तो पर यूनिट एडिशन कितनी हुई? तो चेंज इज 90 minus 60 30 एंड लेबर में चेंज 5 minus 2 is 3, तो 30 divided by 3 10 यूनिट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी तो आपको हर लेवल का दिया होता है तो आप इंडिविजुअली निकाल देंगे TPN minus 1, कभी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और सीधा 5 यूनिट्स ऑफ लेबर दे रखा है। अब n-1 तो 4th होता, अगर 5th और 4th दे रखा होता तो जो भी चेंज है टोटल प्रोडक्ट में वही मार्जिनल है, लेकिन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और सीधा 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एन। डेल्टा टीपी इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, 60 यूनिट से 90 यूनिट्स हो गए तो 30, और चेंज इन वेरिएबल फैक्टर 2 यूनिट्स ऑफ लेबर से 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, कितना हो गया? 3, तो 30 डिवाइड बाय 3। एमपी का एक फॉर्मूला TPN minus 1, एमपी का एक फॉर्मूला टीपी, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन एन, और टीपी इज द सम ऑफ एमपी, टीपी इज द सम ऑफ एमपी। टोटल प्रोडक्ट चाहिए, कह रहे हर एक लेवल की मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड कर दो, MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस, कह रहे जितनी भी यूनिट्स हैं सबके अगर मार्जिनल ऐड कर दोगे कि उस यूनिट ऑफ लेबर ने कितना बनाया, सेकंड ने कितना बनाया, थर्ड ने कितना बनाया, 10 थे तो हर एक की इंडिविजुअल अगर ऐड कर दो तो टोटल प्रोडक्ट आ जाती है। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट। तो समराइज करेंगे फॉर्मूले, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। तो अगर बात करें टीपी की, तो टीपी का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? टीपी का फॉर्मूला ले सकते हैं MP1 प्लस MP2 प्लस MP3, जितनी भी यूनिट्स हैं सबका मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? TP माइनस N, N क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो इसी फॉर्मूले से
एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया टीपी का, एपी इंटू एन, वेयर एन इज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन और चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन एन। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला, एमपी के 2 फॉर्मूले, टीपी। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, पता होने चाहिए। मीनिंग और फॉर्मूले अंडरस्टैंड करना जरूरी है आगे कॉन्सेप्ट करने के लिए।